हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 22 सितंबर 2023 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे, जैसा हम रोज करते हैं। और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डील विथ खालिस्तान इशू, जो कि काफी ज्यादा न्यूज़ में चल रहा है अभी। वी विल सी द ओरिजिन ऑफ दिस इशू, देन वी विल आल्सो सी दैट व्हाट इज द करंट डायमेंशन ऑफ दिस इशू। इससे रिलेटेड हमने इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है फ्रॉम द पास्ट टिल प्रेजेंट, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट इन यस्टरडेज डिस्कशन। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी पर्टिकुलरली खालिस्तान इशू। नाउ मूविंग फर्दर टू द पोंजी स्कीम, देयर वाज एन एडिटोरियल, you can say that spotlight editorial about a Ponzi scheme। तो ये पॉन्जी स्कीम हम देखेंगे कि क्या स्कीम थी, और इसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। वी विल सी दैट व्हाट आर द अदर फीचर्स, व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स about the Ponzi scheme and its regulation in India. Then, moving further, we will also see the developmental strategy of India from the moon mission till reduction of poverty. There are two editorials. One is an editorial called a Silent Killer, and there was one explainer in the science section which was headlined as the lurking blood pressure poses a high risk or high health risk in India. दोनों जो एडिटोरियल थे, दे एक्चुअली हाईलाइट the blood pressure issue in Indian population, which was highlighted by the first ever report of WHO, uh, United Nations, on this menace called as high blood pressure in Indian population and the population around the world. Further, we will also see the India's growth trajectory. This editorial also talks about the GDP and its calculations. We will see the impeachment happened in which is about to happen in United States of the Sun, this Biden and his son, and we will see the intricacies। यूएस में impeachment क्यों होती है, इंडिया में impeachment कैसे होती है, यूएस और इंडियन प्रेसिडेंट के पावर्स में क्या फर्क है, वहाँ की impeachment और यहाँ की impeachment में क्या अंतर है। We will see to that. Further, there was one United Nations Climate Ambition Summit which was held in September only। 20th सितंबर को ये summit हुई थी। ठीक है, बट इस समिट में द लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस वेर एबसेंट। ठीक है, एंड एट द लास्ट वी विल आल्सो सी द ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स, एंड वी विल सी न्यूज अबाउट भारतनाट्यम। हम भारतनाट्यम को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, इसके की फैक्ट्स को। बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, आई वांट यू ऑल टू पे अटेंशन टुवर्ड्स आवर न्यू कोर्स about UPSC Foundation Batch. This foundation batch is built and this is curated for those students who want to start their preparation of UPSC, whether they have already started or they are in the race or they have attempted their UPSC once or twice, but still they are not able to crack it by some or the other reason. This foundation batch caters to all of your needs in the UPSC exam. Okay, so I want all of you to call on these numbers and get yourself enrolled in this batch, because this batch runs on totally a unique model which was framed by faculties, experts, and the mentors of Perfection IES. ठीक है, so if you need any further clarification, call on this number for counseling sessions. Let's begin with the discussion, and as has been our always कि जब भी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हम डिस्कशन स्टार्ट ही करते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन से। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये 2023 के अभी हम 2023 का ही पेपर कर रहे हैं, और 2023 के प्रीलिम्स में पूछा था यूपीएससी ने ये क्वेश्चन अबाउट। This question talked about that some mushrooms have medicinal properties, some have psychoactive properties, some have insecticidal properties, and some have bioluminescent properties। ठीक है, चलो ये तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, जब आप स्क्रॉल करते होगे तो आपको ये फोटोज वगैरह दिख गई होंगी, कहीं पे वो मशरूम जो है वो चमकते हुए नजर आते हैं।
Mushrooms having medicinal properties, yes, they do have, like गुची मशरूम। ठीक है, गुची के बारे में 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। तो दिस वाज टोटली एविडेंट कि हाँ ठीक है, अगर 22 में एक क्वेश्चन आया है तो 23 में या 24 में रिपीट होने वाला है ना। अगर 23 में नहीं आता तो 24 में आता। दैट इज वाई वी डू दिस एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज, कि हाँ सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है ना। इवन मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन आएगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2024 में। तो आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दैट एनालिसिस आल्सो। ठीक है। फर्दर, सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव properties and some mushrooms have insecticidal properties. These were the two options, 2 और 3, जहां पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते थे। बट अगर आप यही चीज देखो तो आपके एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी में बायोलॉजी में ये लिखा हुआ है, साइंस की एनसीईआरटी में, अबाउट द मशरूम फैमिली। ठीक है। ऑल ऑफ दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, जो 13 पेज का चैप्टर है, और इसमें मशरूम्स के बारे में सब कुछ लिखा गया है। और ये चारों ऑप्शंस जो है करेक्ट है। ठीक है। बिकॉज अगर आप देखो तो सिंपल टर्म वाज सम। तो यू डू नॉट नो दैट वेदर एनी ऑफ सच मशरूम हैज बीन डिस्कवर्ड और नॉट येट डिस्कवर्ड। ठीक है। अब डिस्कवर हो गया है या नहीं हुआ है, या उसी दिन डिस्कवर हुआ हो जिस दिन ये एग्जाम हो रहा हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट। तो इसलिए अगर ऐसा डिस्क्रिपेंसी हो स्टेटमेंट में, whenever there is such kind of discrepancy in statement, you tend to keep it correct. ठीक है। Let's move to the next editorial or the news analysis. But yes, you should go through these oyster mushrooms who have the medicinal properties. There are mushrooms, psilocybin or known as magic mushrooms, which have hallucinogenic properties. Further, lactarius mushrooms, ठीक है, they treat the wounds, and there are some mushrooms who use luciferins, or these are the poisonous mushrooms also। ठीक है। तो you can go through this। नाउ टॉकिंग अबाउट द खालिस्तान इशू, तो अगर आप आज का ही पेपर देखो तो 5-6 न्यूज आर्टिकल्स आए हैं खालिस्तान न्यूज के ऊपर। ठीक है। देयर वाज वन मोर मैन हु वाज हाईलाइटेड अर्लियर एज he was designated a wanted criminal by National Investigation Agency, and recently he was shot dead in Canada। तो अभी हमने क्या किया है, वीजा सर्विसेज स्टॉप हो गई। और आज ही के न्यूज़पेपर में देर आर अराउंड 5 to 6 एडिटोरियल्स, दीज न्यूज आर्टिकल्स, जिनमें यूएस दिस इंडिया कनाडा और ये खालिस्तान इशू हाईलाइट किया गया है। व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस खालिस्तान इशू? तो दिस खालिस्तान मूवमेंट इज अ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट which demands creation of an independent Sikh state called as Khalistan in the Indian state of Punjab. Simple. The movement has its roots in the partition of India and Pakistan in 1947, because at that time there were communal tendencies, and when Muslims demanded a separate state, so demanded the Sikhs. Many Sikhs felt that they were not given a fair deal in the partition, because of this uh, relative deprivation which they felt, they started demanding, and they felt the marginalization post partition in both the countries, Pakistan and India both। ठीक है, दोनों जगह उनको ऐसा लगने लगा। And with this scenario and with this discourse, they developed a separatist movement, and this Sikh separatist group launched a series of attacks on Indian government from 1970 to 1980s, जिसमें सबसे important and सबसे brutal attack was there on Golden Temple, और which is the holiest Sikh shrine। And इसके बाद the tendency among the militant Sikh groups increased। ठीक है, जिसमें आप भिंडरावाला ले लो, या जितने भी उस टाइम पे खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अकाल तख्त, ठीक है, विच वाज लाइक अ बिट हैम्पर्ड, एंड तो दैट टच्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी, और उसकी वजह से द टेंडेंसी एंड द सेंटिमेंट, एंटी नेशन सेंटिमेंट और एंटी नेशनल सेंटिमेंट increased, and due to which this radicalization of Khalistan movement was on next level। So what is the current issue? This current issue pertains to the Sikh diaspora which is located in other countries। कहाँ कहाँ पे? Canada, UK, United States।
अब जो सिख डायस्पोरा बाकी कंट्रीज में है, इन द recent years we have seen that खालिस्तान मूवमेंट इन इंडिया हैज बीन साइलेंट, ठीक है, बट देर इज रिसर्जेंस ऑफ दिस मूवमेंट इन दी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया. क्यों? देर इज दिस डायस्पोरा विच इज लिविंग इन दीज कंट्रीज एंड दे आर रेजिंग the demands and they are raising the movement and they are running this discourse among the diaspora only, so that they start a resurgence on this Khalistan movement. In such scenario, Indian government had deeply remained suspicious about this Khalistan movement, and in India we have taken major security concerns, well as there is a hostile neighbor of ours, Pakistan, which is a potential threat to give more impetus to this movement. ठीक है. However, अगर आप अराउंड द वर्ल्ड देखो तो इंडिया या इंडिया के बाहर, इंडिया एंड कनाडा में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पिछले एक साल में बहुत बार ऐसा हुआ है, और अभी जो करंटली ऑनगोइंग क्राइसिस है, दैट इज अबाउट द जस्टिन ट्रूडो क्रिटिसाइजिंग इंडियन गवर्नमेंट एंड एलिजिंग इंडियन गवर्नमेंट इनटू द निज्जार और हरदीप सिंह निज्जार's death, killing, and this accusation has led to a pause in the bilateral relations. Particularly, the visa services have been paused, and India has suspended the visa services in Canada. This has created a panic in Punjab also, as another Khalistani operative was gunned down in Pakistan. Done. And there are 10 more pictures which NIA has released recently, and we will see that how this turmoil goes to be, like how this turmoil moves further. और इसमें अभी चैलेंज ये है हमारे लिए that in the year to come, because we have an election year ahead 2024, तो we have to see that कि अब आगे क्या होने वाला है ना. From the UPSC perspective, this topic comes in our internal security. ठीक है, which is a part of paper third, and we should be thorough with the Khalistani movement, बस. ठीक है, and we should be thorough with uh, this current event which happened between India and Canada, and this may escalate to other countries also. Now, leading to the spotlight editorial, this editorial is quite long. जब भी ये spotlight या ground zero का report आता है, ठीक है, this editorial I usually like recommend you to read this editorial just to make sure that you get an understanding about all of this, and to make it simple for all of you and to make it easy for all of you to remember and to understand. You need to remember this story. That is, this article discusses a case involving cryptocurrency based Ponzi scheme called as Solar Techno Alliance. ये जो स्कीम चलाई थी, this actually defrauded 2 लाख इन्वेस्टर्स. 2 लाख लोगों ने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था, और उनको बोला गया था कि आपको 20 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होगा, आप 20 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद आपको वापस पैसा मिलना शुरू हो जाएगा. बस दैट्स इट. 20 महीने उनने इन्वेस्ट कर लिया और उनको बोला गया कि अगर आप जुड़ते हो तो आप अपने नीचे 2 और जोड़ दो, फिर वो 2 और जोड़ेंगे और फिर वो 2 और जोड़ेंगे. ठीक है, दैट इज पॉन्जी स्कीम. दिस पॉन्जी स्कीम वाज बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है, दीज विक्टिम्स जो इस स्कीम में like who were victimized, or the person who invested, the people who invested into this, they belong to the small trader and villagers group. और जितने भी गरीब लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 10,000, 15,000, 20,000 का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, उनने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था, 10,000 का इन्वेस्टमेंट था तो इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था ताकि वो इन्वेस्ट करे और उनको वापस रिटर्न मिले. बट दिस पॉन्जी स्कीम, इफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दीज स्कीम्स, तो दे रन ऑन अ डिफरेंट सिनारियो. ये पॉन्जी स्कीम्स कैसे चलती है? पॉन्जी स्कीम ऐसे चलती है कि फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी एक इंसान को लिया, ठीक है, द पर्सन हु इज लाइक द ड्राइविंग फोर्स और हु इज मैनेजिंग दिस स्कीम, ही स्टार्ट्स गेनिंग फंड्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पर्सन्स. ठीक है, then he gains funds from all of these persons, and then he makes this chain. जो ही ये चेन बनती है,
जितनी भी ये चेन बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, जितने भी लोग इसके नीचे जुड़ते जाएंगे, उतना ये पैसा कलेक्ट करता जाएगा। और जितना इसके पास पैसा ज्यादा आएगा, वही पैसा ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, ताकि जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वालों को देख के और पैसे लेके आए। और जितना पैसा लेके आएगा और लास्ट में जितना पैसा जमा हो जाएगा, वो ये पैसा लेके भग जाएगा आउट ऑफ इंडिया। दैट इज इट। ठीक है। नाउ दीज पॉन्जी स्कीम्स वर बैंड बाई, आर करंटली बैंड। ठीक है, 2019 के बाद दे आर बैंड। We will understand that what was the modus operandi of this Solar Techno Alliance. This operated as a multi-level marketing scheme. जैसे मैंने बोला, this is the multi-level, एक दो तीन चार पाँच छह levels. ठीक है। This operated in such a way, and the investors were required to download the STA Trust wallets. This application, वो यहाँ पे पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट करने के बाद द लॉक इन पीरियड वॉज अराउंड 20 months, और उसके बाद देन दे हैव टू रिलाई ऑन देयर लिंक्स। जितने भी वो लिंक जनरेट करेंगे, जितने भी वो नीचे अपने लोग लेके आएंगे, उतने लोगों को वो उनसे पैसा ले ले लेंगे, रेफर करेंगे। जितना वो पैसा डालेंगे, और उतने उनके चांसेस बढ़ेंगे कि उनको पैसा वापस आए 20 महीने के बाद। इस स्कीम को चला कौन रहे थे? फर्स्ट वॉज गुरतेज सिंह सिद्धू एंड द सीईओ डेविड गेज, हु इज इन हंगरी। तो इन लोगों को पकड़ लिया गया है बाय द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ ओडिशा पुलिस। पकड़ने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। हाउएवर जो इसका ये फॉरेनर था, वो चला गया, वो भाग गया है यहाँ से, दिल्ली मतलब इंडिया से भाग गया। ही वेंट टू आई गेस जर्मनी और समवेयर एल्स। तो देर वॉज दिस सेलिब्रिटी गोविंदा हु वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस स्कीम। दैट्स इट। ठीक है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द चार्जेस विच were laid on the price chit and money circulation scheme एक्ट 1972, जिसके अंदर ये पोंजी स्कीम बैन है। सेकंड, द चैलेंजेस इन रिकवरी। यस, इफ यू सी दैट, जो पैसा है वो तो चला ही गया, जिसको उठाना था पैसा वो उठा के चला गया। बट अब बचा क्या है फिर यहाँ पे? नाउ दे विल सी कि कितने इनने एसेट्स खरीद रखे हैं। जितने भी इनके एसेट्स होंगे उनको फिर ईडी सीज करेगा, और उसके बाद ये पैसे इनको वापस मिल जाएंगे। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव इज, फर्स्ट, Buds Act, that is banning of unregulated deposit schemes, 2019. This act, section 2 clause C of this act, defines an unregulated deposit scheme as any scheme or arrangement which under which the deposits are accepted from the public, and then these deposits, whether directly or indirectly, are taken in a disbelief that you will get some return, but actually the return is not provided, and similarly these types of schemes are banned। ठीक है, इनको अनरेगुलेटेड स्कीम्स बोलते हैं, और इसीलिए इन पे बैन आ गया था 2019 में। पॉन्जी स्कीम सारी बैन हो गई थी। ठीक है, तो करंटली पॉन्जी स्कीम जो है बैन है इंडिया में। तो हमें कुछ कुछ प्रोविजंस हम देखेंगे, कुछ कुछ लॉज हम देखेंगे जो इंडिया में पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड है। सेकंड इज द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978, जिसके अंदर इनको अरेस्ट किया गया था अभी ओडिशा पुलिस ने, और इकोनॉमिक विंग ऑफ ओडिशा पुलिस। दिस एक्ट, अंडर सेक्शन 2C ऑफ दिस एक्ट, ऑल्सो डिफाइंस अ मनी सर्कुलेशन स्कीम as any scheme or the arrangement by whatever name called, under which a person enters into an agreement with another person for the purpose of lending and borrowing money, in pursuance of which the first person lends a sum of money to the other person and then expects a return from that person। ठीक है, बट यहाँ पे यही चीज देखनी है दैट ये जितनी भी मनी सर्कुलेशन स्कीम्स है, इसके रिलेटेड हमारे पास एक्ट्स हैं। ठीक है, एंड इंडियन पीनल कोड ऑल्सो अंडर सेक्शन 420 टॉक्स अबाउट द सेम पॉन्जी स्कीम्स। ये पॉन्जी स्कीम इसलिए गलत है बिकॉज, और व्हाई इज दिस अ कॉज ऑफ कंसर्न, दिस पॉन्जी स्कीम, व्हाई इज दिस अ कॉज ऑफ concern? Because it takes the hard earned money of the lowest most section of the people। ठीक है, जितना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया था, दिस इन्वेस्टमेंट वाज डन बाय द रूरल एंड द विलेज पीपल और द स्मॉल ट्रेडर्स। और जब इनका इन्वेस्टमेंट जाता है, जो इन्वेस्टमेंट जाने वाला था, ये कहाँ जाने वाला था? ये जाने वाला था हमारे फॉर्मल मार्केट में। अदरवाइज, है ना, ये फॉर्मल मार्केट में जाता और कहाँ जाता?
या तो ये किसान विकास पात्र या ये सेविंग स्कीम्स, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते, या किसान विकास पात्र में इन्वेस्टमेंट करते, या ये इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते, ये बैंक में इन्वेस्टमेंट करते, एफडी बनाते, वो पैसा इंडिया में रहता और वो पैसा हमारे फॉर्मल बैंकिंग में सर्कुलेट होता। वो अगर वहां पे सर्कुलेट होता तो वो पैसा गवर्नमेंट के हाथों सर्कुलेट हो रहा होता, पीपल टू पीपल सर्कुलेट हो रहा होता। एंड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, है ना, तो जितना पैसा हैंड्स चेंज करेगा, जितनी बार पैसा हाथ बदलेगा, जितना पैसा सर्कुलेट होगा, उतना ही वो पैसा ज्यादा बनाएगा और उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बट यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यहाँ से पैसा निकल के सीधा आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। ठीक है, इट्स नॉट, इट माइट बी चेंजिंग हैंड्स, बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि यहाँ से भी पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है, यहाँ से भी पैसा डायरेक्ट इनके अकाउंट में जा रहा है और ये पैसा लेके चले जा रहे हैं इंडिया से। दिस क्रिएट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द नेशन। सिमिलरली, इसी में दिस इज एन इकोनॉमिक ऑफेंस एंड द ऑफेंस इज रेगुलेटेड बाय दीज एक्ट्स, सो दैट यू नीड टू जस्ट गो थ्रू दीज एक्ट्स एंड रिमेंबर दैट देर आर सच एक्ट्स जिनसे ये रेगुलेट होता है, क्या, पॉन्जी स्कीम्स एंड सच स्कीम्स। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स आए थे विच आर मोस्ट पर्टिनेंट अबाउट दिस, एंड इन दी जयेश भाई गोर्धन भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू सेट अप a nodal agency to investigate these Ponzi schemes. And in the Rose Valley Hotel and Resort Limited case versus SEBI, government this Supreme Court directed the SEBI to set up a directed the government to set up a special court so that this court will try the cases related to Ponzi scheme. तो दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रेकमेंड की थी और ये दो चीजें हमारे मेंस के आंसर के लिए काम आ जाएंगी। ठीक है, आउट ऑफ दिस वी कैन टेक टू थिंग्स। ठीक है, टू और थ्री। वन इज दिस 2019 का एक्ट, सेकंड इज दिस प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, एंड थर्ड इज दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जहां से हम वी कैन यूज दीज एक्ट्स इन आर मीन्स आंसर 2 to 3 पॉइंट्स अबाउट पॉन्जी स्कीम्स। ठीक है, डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस एडिटोरियल, इस एडिटोरियल को हम साथ करेंगे इस एडिटोरियल के साथ। दो एडिटोरियल आए थे, एक ये साइंस सेक्शन का एडिटोरियल था which talked about the lurking blood pressure poses a health risk in India. Similarly, ये वाला एडिटोरियल हमारे लीड एडिटोरियल पेज पे था। एडिटोरियल पेज पे ये जो पेज नंबर 10 होता है, आई गेस 6 और 7 पेज नंबर, इस एडिटोरियल पे दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस की गई थी, दैट वाज द फर्स्ट एवर रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ दिस हाई ब्लड प्रेशर। दोनों एडिटोरियल्स दोनों एडिटोरियल्स एक ही बात को डिस्कस कर रहे हैं, दैट हाउ मच पर्टिनेंट एंड हाउ मच सिग्निफिकेंट इज दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती है। पर्टिकुलरली हाई ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लैंसेट रिपोर्ट। ठीक है, तो लैंसेट जो जर्नल है, इनने लास्ट टाइम बताया था लास्ट ईयर दैट हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो दिस विल बी आर इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस क्वेश्चन। ठीक है, ग्लोबली 1 in 3 individuals आर अफेक्टेड बाय हाइपरटेंशन एंड 4 out of 5 people with hypertension do not have it adequately controlled। तो इसी से आपको पता चल सकता है दैट कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन कितना ज्यादा है इंडिया की इकोनॉमी पे, और इसी चीज की वजह से हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, और दिस थिंग डिमांड्स अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। दैट टू इज अ प्रिवेंटिव मेजर एंड दैट टू इज अ पोस्टमार्टम मेजर, है ना। जब डिजीज हो गई, डिजीज के बाद इंसान को बीमारी हो गई, बीमारी के बाद ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए इंश्योरेंस है ना। बट एट द फर्स्ट थिंग, दिस रिपोर्ट विल हेल्प अस इन रेजिंग अवेयरनेस about this issue, and this thing will help us in raising awareness about the lifestyle। ठीक है ना, that how to build the proper lifestyle। इसके साथ साथ द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद दिस हाइपरटेंशन स्टार्ट्स इवन बिफोर द क्लिनिकल थ्रेशोल्ड ऑफ। तो अगर आपको लगता है
कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, अगर ये ब्लड प्रेशर है किसी का, तो हेल्थ रिस्क हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? इस लाइन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका जो क्लिनिकल थ्रेशहोल्ड है हाई ब्लड प्रेशर होने का, दैट इज 140/90। बट अगर आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हो, इस पॉइंट पे पहुंच गए हो कि आपका बीपी अभी 140/90 रह रहा है, दैट मीन्स आपके जो हेल्थ रिस्क हैं दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, है ना। आपको अब ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको इस पोजीशन पे पहुंचना ही नहीं था, इस पॉइंट पे पहुंचना ही नहीं था। आपको अभी जो करना है, दैट इज योर, यू नीड नाउ मिटिगेट द प्रॉब्लम्स, यू नीड नाउ ट्रीट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको अपना हेल्थ केयर अब ठीक करना पड़ेगा। हाउएवर, इंडिया में देर आर अराउंड 188 मिलियन adults aged between 30 to 79 who have hypertension, but only 37% of them have been diagnosed. 30% have received treatment and merely 15% have their hypertension under control। ठीक है, और ये कंट्रोल कैसे आएगा? ये आएगा लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, फूड हैबिट्स। ठीक है, और ये कैसे आएगा? अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें बंद करने से। एंड वुमेन इन इंडिया हैव मच बेटर पोजीशन। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज इस चीज का, हाई ब्लड प्रेशर का, दैट इज हाई सॉल्ट कंजप्शन। ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे हाईलाइट किए गए थे, किसमें? इस रिपोर्ट में। देयरफॉर डब्ल्यूएचओ रेकमेंड्स कि हमारा जो सॉल्ट का इनटेक है वो 30% कम होना चाहिए। फर्दर, इंडिया हैज येट टू फुल्ली इंप्लीमेंट द मेजर टू कट डाउन द सॉल्ट कंजप्शन। डन। मूविंग फर्दर, इंडिया ने एक कैंपेन या इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था। दिस वाज एम टू एनरोल मिलियंस ऑफ दोज जिन पेशेंट्स का हाइपरटेंशन है, उनको पहले एनरोल करना था और उसके बाद उनको ट्रीट करना था। और जितने एनरोल हुए हैं, अराउंड 2.1 मिलियन इंडियंस, आउट ऑफ देम 23% हैव अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, therefore managing the blood pressure for 2.5 crore Indians can prevent up to 5 lakh deaths। तो इसीलिए हमें इसको प्रिवेंट करना चाहिए, है ना, 5 lakh deaths in next 10 years। So what is the way forward which was suggested by this editorial? ठीक है, यहाँ इस वाले एडिटोरियल में से मैंने बस वे फॉरवर्ड लिया हुआ है। ये वाला जो एडिटोरियल था, इसमें से हमने बस ये सारे पॉइंट्स ले लिए, क्योंकि ये एडिटोरियल ज्यादा फोकस था किस पे? रिपोर्ट पे। दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, विच एम्स टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर फॉर 70 मिलियन पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर इन द कंट्री। दिस addresses healthcare accessibility. Affordability is essential for hypertension management in India experiencing deep poverty. The continued effort to improve data collection and evidence-based policies are needed to combat uncontrolled hypertension. This ensures long-term medication adherence and close monitoring of complications and the challenges that are to be addressed in India's hypertension management programs। ठीक है, सो व्हाट डू वी नीड लॉन्ग टर्म मेडिकेशन एडहेरेंस। बिकॉज लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे और उसके बाद 2 दिन खा के छोड़ देंगे। दैट इज द पॉइंट जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। व्हाट एक्चुअली इज हाइपरटेंशन इज दैट कि जब आपकी ब्लड वेसल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, दैट इज 140/90 हो जाए। दिस इज कॉमन एंड समटाइम्स कैन बी सीरियस इफ इट्स नॉट ट्रीटेड। ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं? तो दो नंबर्स होते हैं, वन इज सिस्टोलिक नंबर एंड अनदर इज डायस्टोलिक नंबर। ठीक है, तो दिस सिस्टोलिक नंबर मींस जो प्रेशर मेजर किया जाता है ब्लड वेसल्स का व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बीट्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो आपकी वेन्स है, उनमें कितना प्रेशर पड़ता है जब हार्ट बीट होती है, जब हार्ट प्रेशर पंप करता है ब्लड को, है ना, थ्रू योर वेन्स, थ्रू योर ब्लड वेसल्स, उस टाइम पे कितना प्रेशर पड़ता है ब्लड वेसल्स पे, दैट इज द सिस्टोलिक नंबर। सेकेंड इज द डायस्टोलिक नंबर। दिस represents द प्रेशर इन द वेसल्स व्हेन द हार्ट रेस्ट्स बिटवीन द बीट्स। ठीक है, तो जितना प्रेशर पड़ता है और जितना प्रेशर रिलीज होता है, उसी के बीच का नंबर होता है ये। ठीक है, और वही एक नंबर होता है
सिस्टोलिक नंबर एंड डायस्टोलिक नंबर। डन, दैट्स इट। और ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी हजार बार पूछ चुका है, और मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाए हैं वेर यूपीएससी आस्क्स यू द फंडामेंटल्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, डन। और इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू दीज हैबिट्स, और अगर आपको ऐसा कोई हैबिट है तो लीव दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस एडिटोरियल talks about two things. One is giving India's masses the social and human capabilities required for upward mobility will be equivalent of a lunar takeoff in economic progress. ऑथर यहाँ पे दो चीजें लिख रहा है। ऑथर यहाँ पे लिखता है कि जो हमने ल्यूनर या मून शॉट ले लिया है ना, दिस इज इंडीड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द स्पेस सेक्टर, है ना। हमने देखे थे फोटोज व्हेन देयर वाज अ मिसाइल व्हिच वाज कैरीड, मिसाइल का जो टॉप था, ठीक है, रॉकेट का जो टॉप था या सैटेलाइट का जो टॉप था, वो साइकिल पे लेके जा रहे थे इसरो इन 1990s, है ना। बट अभी करंटली वी कैन सी दैट इसरो has been capable of this thing that it landed on the south pole of the moon. एंड ये दो जो कॉन्ट्रास्ट फिगर्स है, इन दोनों को हाईलाइट करता है ऑथर विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू द पॉवर्टी, द अंडर डेवलपमेंट, हंगर विच इज देयर इन इंडिया। ठीक है, द पॉवर्टी एंड द डेस्टिट्यूशन। फर्दर ही हाईलाइट्स द सोलर मिशंस, lunar missions and other technological advancements, but with the persistence of poverty and inequality in country. अब ये ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है? ऑथर सेज दैट 1960s में इंडिया ने स्टार्ट किया था अपना स्पेस रिसर्च का एंडेवर, और हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट्स जितनी हमने की है स्पेस में या स्पेस सेक्टर में, चाहे हमने आईआईटीज बनाए, आईआईएम्स बनाए 1950s या 1960s में, प्लस हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए फॉर पीएसयूज टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट। विक्रम साराभाई, he envisioned this thing that the use of satellites for national development इंक्लूडिंग द टेलीकम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, इस सब में हमने ग्रोथ अच्छा किया। हावेवर देर आर सम क्रिटिक्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी, कि जो हम डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर चुके हैं उसमें क्या खामियां है। द क्रिटिक्स आर्ग्यू अबाउट दिस थिंग दैट हमारा डेवलपमेंटल मॉडल इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड वी मिस डायरेक्ट द रिसोर्सेज। और इससे होता क्या है दैट some of these suggest that a labor surplus country like India should focus on labor intensive industries rather than capital and technology intensive industries like the telecommunication industry, like the space sector, like the advanced technologies like quantum computing and all। और इस सब में हमें इन्वेस्टमेंट ना करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे। However, अगर आप देखो तो what is actually the role of public investment in the development? तो public funding does play a crucial role in the success of India's space programs, है ना, क्योंकि अगर फंडिंग नहीं होगी तो कैसे होगा। प्लस टेक्नोलॉजिकल एंडेवर्स ऑल्सो, you can see that there is a program which was publicly funded in United States, like the internet in United States. So this space program is also was also publicly funded, and we do have new technologies and their gestation periods, which includes the initial costs, public support. However, अगर आप देखो तो there are inequalities in India which hurdle this progress. और क्या होता है inequalities, क्या है हमारे पास? We do have multi-dimensional poverty index, है ना, and we do have low ranking when we talk about the human development index. We do have low ranking when we talk about the gender gap index, है ना। We do have low ranking when we talk about the social development, land redistribution, है ना, amendment of this the implementation of land reforms post first constitutional amendment act. This all together cumulatively help the growth of inequality in India, है ना। और इस सब की वजह से इनइक्वालिटी की ग्रोथ हुई, इनइक्वालिटी की ग्रोथ होने की वजह से पावर्टी, है ना। ऑल दो इंडिया हैज बीन टैग्ड विद दिस थिंग दैट वी took away, or we were successful in drawing or in uplifting the largest number of poor from the below poverty line to the above poverty line in 2018, 19 and
2020 एंड इन लास्ट ईयर ऑल्सो 2021 में भी हमने बहुत सारे पुअर्स को अपलिफ्ट किया है फ्रॉम द पॉवर्टी। हाउएवर अभी हमारे पास जरूरत क्या है, दैट वेयर इज द नीड टू रीइंस्टेट स्टेट सपोर्ट। व्हाट इज द नीड टू रीइंस्टेट स्टेट सपोर्ट? तो 2018, 19, 20, 21 we have been uplifting the poor, but still we need some more areas, we need to work on some more dimensions so that the poverty and the inequality, the menace of these two things gets away. और क्या करना है हमें? We need to address the lopsided domestic demand. We need this demand which is driven by the upper income class, and we need to address the challenges of social inequality through the strategies which have been adopted by East Asian countries like Japan and China. और इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी नीड स्टेट सपोर्ट। वापस स्टेट को क्वेश्चन में लाना है एंड वापस स्टेट का काम आएगा। दिस स्टेट हैज टू बी बैक इन एक्शन, and how the state will be back in action is India should acknowledge this thing, that the importance of its ambitious development strategy that emphasized state support for technological and industrial capabilities. In the face of global competition, India must reinstate the state's support for industrial growth, further accessible education, higher education, and upward mobility among the masses. Then only we can think about ensuring growth based on inclusive principles. ठीक है? So let's move to the next editorial which talks about India's growth trajectory, and this editorial particularly talks about the quarter one. ठीक है, ये यहाँ पे हाईलाइट करता है that quarter one data covering the GDP growth, ठीक है, covering the GDP growth from April to June of financial year 24 boasts a nominal growth rate of 8% and a real growth rate of 7.8%. ये जो एडिटोरियल है, ठीक है, जो एक्सप्लेनर आया है इकोनॉमिक नोट्स का, ये एक्सप्लेनर डिस्कस कर रहा है बस क्वार्टर वन के फिगर्स को। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा दैट वी नीड टू रिवाइज दिस कैलकुलेशंस ऑफ जीडीपी विच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्वार्टर वन क्वार्टर टू ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी वाज चेंज्ड पोस्ट 2015। हम अगर इसको रिवाइज करें तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन टैकल वन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स and you will be able to tackle 2, 3 or more than 5 points in mains questions. Whether you place criticism or you place arguments in favor of this GDP calculation, you will use this argument and these points in your mains answers. The government switched to new base year in 2011-12। ठीक है, हमने नया बेस ईयर सिलेक्ट किया जनवरी 2015 में फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। टू बेटर क्वांटिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डिसकंटिन्यूड द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और हमने शिफ्ट किया किस पे? जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड जीडीपी दैट इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीडीपी थ्रू ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, वी स्टार्टेड टू कैलकुलेट दिस ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब दोनों में अंतर क्या है? मार्केट प्राइस कैलकुलेट्स द इन्फ्लेशन एंड द प्राइसेस, दिस मार्केट प्राइस टेक्स केयर ऑफ फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो नेट टैक्सेस जितने इसमें लगते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं प्लस इन दी फैक्टर कॉस्ट, एंड दिस ग्रॉस वैल्यू एडिशन calculates the sum of all the additions, value additions which happen at multiple stages of a product। ठीक है, एक प्रोडक्ट स्टार्ट होता है कहाँ से? रॉ मटेरियल से, और उस रॉ मटेरियल को एक इंडस्ट्री कन्वर्ट करती है किसी एक प्रोडक्ट में। दिस प्रोडक्ट इन टर्न इज अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर इंडस्ट्री, देन दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर इंडस्ट्री, लाइक आई टेल यू प्लास्टिक, है ना, और यू कैन से सिंपली शुगर केन। दिस कैन बी अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गोइंग टू अ शुगर मिल, जो यहाँ पे शुगर बनाती है। दिस शुगर goes to another factory which makes biscuits। ठीक है,
and these biscuits can be a raw material for some other industry which makes some other product. So this all these levels and all these points, there is value addition in the product, and this value addition is calculated in the gross value addition formulas of GDP calculation. ठीक है, ये चीज को समझना है that we changed from factor cost to market cost and value addition. तो with the switch to new base year, हमने नया बेस ईयर ले लिया, दैट इज 11-12. ठीक है, ग्रोथ रेट्स जो पहले प्रिडिक्ट की गई थी 6.9%, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई फ्रॉम 4.7% टू 6.9%. अर्लियर 2012-13 का जो ग्रोथ रेट था, जो 12-13 में प्रिडिक्ट किया गया था, दैट वाज 4.5%, वाज नाउ प्रिडिक्टेड टू बी 5.1%. क्यों? बिकॉज दिस मार्केट प्राइस ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? इन्फ्लेशन है ना, the effects of inflation are also there. Therefore, the most recent series, that is the base year, was changed from 4-5 to 11-12. This organized the private sector and a new data series, that is MCA 21. This was a data set which was developed by Ministry of Corporate Affairs. ठीक है, और इस डेटा सेट में क्या है? देर इज अ यूनिक 20 डिजिट कोड जो हर कंपनी को दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा, और इनका डेटा सेट जो है तैयार किया जाएगा. दिस डेटाबेस विल बी कैलकुलेटेड, और इसी डेटाबेस के बेसिस पे दी calculations of the industry and calculations of the industrial growth will be calculated. Moving further, there are changes in the volume where accounting also. However, the changes in value were not accounted in the previous system. The IIP was used, that is the industrial, there was this industrial input product, or this, not remember it what it was, IIP was used to track the manufacturing and activity, trading activity. ठीक है, तो this earlier used to change in used to calculate the changes in volume but not in the value. However, now post 2015 we are now changing, and we are now calculating the values also, that how much change is there in the value of economy, how much value has been added to every product, how much value, and this value equals to what? Income. जितना आप वैल्यू ऐड करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हो या चाहे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, ठीक है, जितना वैल्यू आप ऐड करते हो वही वैल्यू आपकी इनकम होती है. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज सिटिंग एज अ मैनेजर, ठीक है, दिस मैनेजर, डज ही ऐड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट विच हिज इंडस्ट्री इज प्रोड्यूसिंग? ठीक है, अगर यहाँ तक सप्लाई चेन या अगर यहाँ तक जो इसकी प्रोडक्शन लाइन है उनने एक प्रोडक्ट बनाया, पेन, ठीक है, व्हाट डज दिस मैनेजर add to this pen, and then he sells this pen in the market, or he sets a strategy so that this pen is sold at rupees 2000, जबकि इस पेन की कॉस्टिंग थी ओनली 1500. तो दैट इज द वैल्यू. एंड अगर ये प्रोडक्ट है जो अभी 2000 का बिक रहा है ना, और इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था 1500, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इस मैनेजर के स्किल्स, इस मैनेजर की कैपेबिलिटीज, इसका वैल्यू एडिशन, due to which, due to that strategy, due to that process, due to that input, this pen is sold at different price in the market. And this all value addition is calculated when we talk about the new series post 2015, है ना. उसके बाद there is a newer system, that is MCA 21, जो मैंने अभी आपको बताया, that MCA 21 was incorporated, which allows firms and companies to electronically file their financial results and financial data. Previously, the farm produce was used to calculate the agricultural income. Now, the agricultural income has been expanded. This value addition in the agricultural income has also been expanded. इसके साथ साथ फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है, म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसीज की, इसको भी कैलकुलेट किया गया. प्लस स्टॉक ब्रोकर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड पेंशन फंड्स, दे ऑल वेयर टेकन इनटू कैलकुलेशंस. ठीक है, द ओल्ड सिस्टम यूज्ड एनएसएसओ का 1999 का डेटा एंड इसका सर्वे, बट द न्यू सिस्टम यूजेस द 2011-12 वाला सर्वे, and these were the changes which were adopted from 2015 onwards in the India GDP calculation. ठीक है, इन चेंजेस को याद रखना है.
ये इकोनॉमी का बेसिक है, इकोनॉमी का फंडामेंटल है, ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है। नाउ मूविंग टू the next editorial, and this editorial talks about how will the Biden impeachment hearings impact the elections। ठीक है, जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में, बट बाइडेन का होने वाला है इम्पीचमेंट। what do you mean by and what do we think about impeachment and why is this impeachment happening there? तो एक्चुअल में जो वहाँ के रिपब्लिकन लॉ मेकर्स है यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, दे आर परस्यूइंग द इम्पीचमेंट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बाइडन। ठीक है, बिकॉज देर आर टू पार्टीज देर, one is the Republican Party and another is the Democratic Party, and they are pursuing the impeachment of Joe Biden। और जो बाइडन का इम्पीचमेंट करना है, और क्यों करना है जो बाइडन का इम्पीचमेंट, बिकॉज उसका सन द हंटर बाइडन, जिसने जिसके ऊपर कुछ कुछ चार्जेस लगे हैं। चार्जेस क्या क्या लगे हैं इसके ऊपर? पहला है फाइनेंशियल एलिगेशन, कि बाइडन की जो फैमिली है उनको मिले हैं $20 मिलियन। कहाँ से? चाइना, कजाकिस्तान, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन से, इलेक्शन से पहले। और उन्होंने ये पैसे लिए फॉरेन सोर्सेज से, और इसी का एलिगेशन इन पे लगा है दैट वाई, और क्यों इनने ये पैसे लिए, और इन पैसों का जो यूज है वो डायरेक्टली बेनिफिटेड द जो बाइडन इन इलेक्शंस। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट द रिपब्लिकन्स विल इन्वेस्टिगेट दिस थिंग दैट कि बाइडन नाम बाइडन was used in the business decisions taken by his son। ठीक है, जो हंटर बाइडन है, इज अ बिजनेसमैन करंटली, और इसने बाइडन नाम का यूज किया इन हिज डील्स। थर्ड charge which was alleged on this Joe Biden's son is that this allegation includes claims that Joe Biden sought to end an inquiry into Burisma. Burisma, who was Burisma? This is a Ukrainian energy firm on whose board Hunter Biden sat। तो हंटर बाइडन जो है ये बोर्ड मेंबर था किसका? एक एनर्जी कंपनी का, जो यूक्रेनियन एनर्जी कंपनी है, यूक्रेनियन एनर्जी फर्म है, जिसका नाम था ब्रूसिमा। और उस पे जो इंक्वायरी लगी थी, उसने जो there was some lack of this investigation which was happened which was charged upon this Burisma firm by FBI। और उसमें कुछ चार्जेस थे, कुछ एविडेंसेस थे जो उनको मिले नहीं थे, बट हंटर बाइडन बीइंग द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स, उसकी वजह से जो बाइडन स्टॉप द इंक्वायरी। नाउ दीज चार्जेस, ये जो 3 चार्जेस लगे हैं जो बाइडन पे, है ना, इन्हीं चार्जेस के बेसिस पे नाउ जो बाइडन विल बी ट्राइड फॉर इम्पीचमेंट। ठीक है, अब ये क्या हो, अगर ये इम्पीचमेंट हो भी रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मे बी अगर ये इम्पीचमेंट हो रहा है, ठीक है, जो बाइडन का इम्पीचमेंट अगर हो रहा है, तो कैसे होता है एक्चुअल में यूएस में इम्पीचमेंट? तो यूएस में पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो तो प्रीवियस टर्म में ट्रम्प का भी इम्पीचमेंट हुआ था 2 बार, है ना। तो द लेजिस्लेटर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, वहाँ के लेजिस्लेचर को कांग्रेस बोलते हैं, और वहाँ के लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, 2 हाउसेज में एक है सेनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेनेट में हर यूएस के स्टेट से 2 सेनेटर्स आते हैं। तो यूएस में कितने सेनेट्स हैं? 50, एंड 2 सेनेटर्स आते हैं हर स्टेट से, तो 100 इसकी स्ट्रेंथ है। प्लस द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, टू विच द मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे पॉपुलेशन की बेसिस पे इलेक्शन होता है, और इलेक्शन से ही यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मेंबर्स चले जाते हैं, और वही लोग फिर सेलेक्ट करते हैं यूएस का प्रेसिडेंट। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फॉर द कन्विक्शन ऑफ ट्रीजन, बाई दिस ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स ऑफ मिस डिमिनर। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। वन इज ट्रीजन, सेकंड इज ब्राइबरी, हाई क्राइम्स एंड मिस डिमिनियर। हाउएवर इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that there is only one thing, that is the violation of constitution। and does this thing, this violation of constitution, क्या ये कहीं पे डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये डिफाइंड नहीं है। डन। अभी हम देखेंगे दैट कि ये जो इलेक्शन का इम्पीचमेंट, ये जो इम्पीचमेंट हो रहा है बाइडन का, इसका रिजल्ट क्या आएगा। और हमने ये देख भी लिया दैट इम्पीचमेंट क्यों हो रहा है, क्या चार्जेस है और कैसे होगा, अभी हम देखेंगे इसके बाद, जब इस पे नेक्स्ट न्यूज आएगी, तब जब ये इम्पीचमेंट का फर्स्ट प्रपोजल पास होगा, उसके बाद इम्पीच होगा, तो उसके बाद हम देखेंगे।
नाउ टॉकिंग अबाउट द यूएस, दिस यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एमिशन समिट, जिसमें देयर वेर 34 स्टेट्स एंड 7 इंस्टीट्यूशंस जो प्रेजेंट थे, बट जो मोस्ट लाइक हाईली इमिटर्स हैं, जो ज़्यादा इमिट कर रहे हैं पोल्यूशन को, वो इसमें इस समिट में प्रेजेंट नहीं थे। इंडिया, चाइना, न्यूयॉर्क, है ना, नहीं थे प्रेजेंट इस समिट में। दिस क्लाइमेट एम्बिशन समिट विच वो अर्लियर वाज हेल्ड इन 2020 में जब हुई थी, तो दिस हैपेंड इन फ्रांस। ठीक है, दिस वाज कन्वीन्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, यूके एंड फ्रांस इन 2020 इन पार्टनरशिप विद चिले एंड इटली। हावर 2023 में अभी जो ये समिट हुआ है, ये न्यूयॉर्क में हुआ है। कहाँ पे? यूएन के हेडक्वार्टर्स में। हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं अ, इस न्यूज़ में से, जो कल वहाँ पे हुआ है? और ये समिट में द फर्स्ट एब्सेंटीज ऑफ द समिट वे चाइना। These are the largest emitters of greenhouse, US, India, which rank third in the emissions. ठीक है, China, US and India. The criteria for the countries to be considered for speaking slot at the summit included an updated pre 2030। और एक्चुअली में क्या था, जितनी जो ये समिट हो रही है, इसमें कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। और रीजन क्या था? बिकॉज द स्पीकिंग स्लॉट्स वेर लिमिटेड, है ना। एंड इंडिया, चाइना और यूएस को तब भी जा सकते थे, बिकॉज इट डिमांडेड अ प्री 2030, 2030 से पहले नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो रिवाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो हमें सबमिट करने थे वहां पे। ठीक है, एंड नेट जीरो टारगेट्स, एनर्जी ट्रांजिशन प्लान्स, फॉसल फ्यूल फेज आउट प्लान्स एंड मोर एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, ये सब जिन लोगों ने सबमिट किए थे, उन्हीं लोगों को वहां पे स्पीकिंग स्लॉट मिला था। दिस क्लाइमेट एम्बिशन समिट अर्जेड ऑल द मेन एमिटर्स एंड G20 गवर्नमेंट्स to commit to presenting more ambitious economy-wide NDCs, and these NDCs should cover all the gases by 2025, ताकि जो हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रहे हैं, उनको हम सब लोग कम कर पाएं। इसीलिए ये समिट हुआ था। इन दिस समिट द यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, ही हाईलाइटेड एंड एम्फेसाइज्ड ऑन दिस थिंग दैट हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम क्लाइमेट चेंज पे अर्जेंसी दिखाएं, और इस पे वरना देर विल बी अ 2.8 डिग्री सेल्सियस राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। इंडियाज क्लाइमेट प्लेजेस अगर आप देखो तो 2022 में हमने अपडेट करके दिए थे अपने क्लाइमेट प्लेजेस, जिसमें हमने बोला दैट वी विल रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी बाय 45% फ्रॉम 2005 से 2030 लेवल्स तक। 2030 से पहले पहले हम 45% इमिशंस को रिड्यूस करेंगे। सेकेंड, 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिक पावर विल बी सोर्स्ड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जीज, जो कि हमने रिवाइज किया था, अर्लियर हमारा 40% था। थर्ड प्रॉमिस वाज दैट कि हम एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे 3 बिलियन टन्स का, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काम आएगा। एंड एडिशनल दिस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर विल बी बिल्ट बाय 2030। तो इसीलिए हमने एनडीसीज को रिवाइज किया था, प्री 2030 के एनडीसीज को रिवाइज कर चुके हैं हम। एट द लास्ट देयर इज अ न्यूज अबाउट भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक इंडियन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो 2000 साल पुराना है। दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ इंडिया, तमिलनाडु। और अभी ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज दिस सरोजा विद्यानाथन, हु इज अ भारतनाट्यम डांसर, शी पास्ट अवे यस्टरडे। ठीक है, 2 दिन पहले ये पास अवे हुई थी, आवर्स ऑफ थर्सडे में को ये पास हुई थी, एंड शी टर्न्ड अराउंड 86 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नाउ दिस टेम्पल डांस फॉर्म ट्रेडिशनली विच इज परफॉर्म्ड बाय द वुमन is described in Natya Shastra, which is an ancient treatise on theater and dance. भारतनाट्यम में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज नृत्य, अनदर इज नृत्य, एंड थर्ड इज नाट्य। नाट्य इज ड्रामा, नृत्य is expression of the dance, and nrita is pure dance. This is characterized by graceful movements, expressive gestures, rhythmic footwork, and the gestures by face, eyes, and hands. This uses hand gestures like mudras, जैसा मैंने बोला, to tell stories and convey emotions. इसमें जो म्यूजिक यूज होता है वो कार्नाटिक म्यूजिक है। भारतनाट्यम के कॉस्ट्यूम्स बहुत ही वैरीड होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली एक साड़ी होती है, भारतनाट्यम साड़ी, है ना। और जो परफॉर्मेंस होता है, अभी तो करंटली भारतनाट्यम इज परफॉर्म्ड एवरीवेयर,
चाहे वो इंडिया में, इंडिया से बाहर, यूनाइटेड नेशंस, यूएस, बहुत जगहों पे पॉपुलराइज हो चुका है। 20th सेंचुरी में द डांसर्स रुक्मिणी देवी, अरुण डेल एंड बाला सरस्वती, दे वर द टू प्रोमिनेंट डांसर्स जिनने इसको पॉपुलराइज किया, रिवाइव किया भरतनाट्यम को। ठीक है। और अभी वुमेन एंड मेन बोथ आर डूइंग दिस इन टेम्पल्स, थिएटर्स, कॉन्सर्ट हॉल्स, और यूनेस्को इंटेंचेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इसको स्टेटस मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है। कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड सो दैट अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, डांस फॉर्म पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, भारतनाट्यम पे भी क्वेश्चन आ चुका है, कथकली पे भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तो इसीलिए आपको कथक पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। एट द लास्ट देर इज अ यूपीएससी मेंस 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने जीएस पेपर 3 में। और क्वेश्चन क्या था? आज हमारा जीएस पेपर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया 2022 का। अब हम कल से 2023 के पेपर उठाएंगे। ठीक है। The question started asked about the causes and effects of coastal erosion. कोस्टल इरोजन के कॉजेज और इफेक्ट्स। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कोस्टल इरोजन इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है। और रिसेंटली न्यूज में था या नहीं कि कहाँ पे रिसेंटली कोस्टल इरोजन इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से मरीन डेथ हुआ, पोल्यूशन हुआ, कोरल डेथ हुआ, लार्ज स्केल कोरल कोरल दिस क्या बोलते हैं इसको, you can say discoloration or corals died at the large scale due to this pollution. ठीक है। Then what are the available coastal management techniques which will combat the hazard of coastal erosion? ठीक है। और क्या आपके पास अभी अवेलेबल टेक्निक्स है? तो इन दिस क्वेश्चन हाउ यू विल स्टार्ट इज कि की रीजन्स कौन से हैं जहां पे ये कोस्टल इरोजन होता है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या है, प्लस आपको एग्जाम्पल्स देनी होंगी। इफ देर इज एनी फ्रॉम द करंट अफेयर्स यू कैन फाइंड, आपको ये निकाल के लिखना होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखो और मुझे फॉरवर्ड करो ऑन 9031036712। इसके व्हाट्सएप पे आप मुझे फॉरवर्ड करो। आप फॉरवर्ड करोगे तो यू विल गेट एन आंसर एंड इवेल्युएशन एंड अ मेंटोरशिप सेशन विद मी। एट द लास्ट आई हैव गिवन यू सम वैल्यू एडिशन पॉइंट्स अबाउट दिस क्वेश्चन, और इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को आंसर आराम से कर पाओगे। ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द परफेक्शन आईएएस। थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन हेयर। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।